سلام ما به خاک کاظمین تو، سلام ما به ذکر یا حسین تو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. اسعد اللہ ایامکم سعیدا جمیعا. سب سے پہلے آئمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے حضور اور بالاخص حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی بارگاہ میں عقیدت و ارادت کے ساتھ محبت سے لبریز عدیہ تبریک عرض کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت و باکرامت و باشرافت، اور ایسی ولادت جو فیوز و برکات الہی سے پر ہے. جملہ فیوز و برکات الہیہ اس حجت خدا کی ولادت کے وساطت سے اس کی مخلوق تک پہنچ رہے ہیں. اور اسی طرح جتنے بھی اہل ایمان ہیں صاحبان ایمان کی خدمت میں ان کے آقا و مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پاک ولادت باسعادت کی تبریک کا شرف حاصل کرتے ہیں. پروردگار عالم اس عظیم دن پر، اس عظیم امام کی ولادت باسعادت پر جتنے بھی اس کے لطف فضل کرم مہربانیاں ہیں، یا آج کے دن وہ جتنی بھی اپنی سخاوتیں فرمائے گا، جتنی بھی عطائیں اپنی مخلوق پر وہ کرے گا، جتنی وہ ذات آج اپنی اس حجت کی وجہ سے اپنے اس کی سخاوت، اس کا جود اپنے عروج پر ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سائل کی حیثیت سے جملہ مومنین مومنات کے لیے اور مومنین مومنات کے توسل سے اپنے لیے اس کی بارگاہ میں درخواست گو ہیں، اس کی بارگاہ میں ملتمس ہیں، اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی اس نفیس حجت کا واسطہ، اس باب الحوائج امام کا واسطہ، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا واسطہ، پروردگارہ ہم سب پہ اپنے بے پناہ فضل، نعمتیں، مہربانیاں، لطف، ہمیں مادی اور معنوی جملہ نعمات، جملہ مومنین مومنات کے ساتھ ہم گناہگاروں کو بھی اپنی بارگاہ سے عطا فرما. یقیناً تیرا فضل، تیرا کرم، تیری سخاوت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے، اور تیری بارگاہ وہ واحد بارگاہ ہے کائنات میں جس سے جب بھی کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی. کریم اللہ اگر آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت پر، اس انتہائی عظیم ترین دن پر، اس انتہائی سعید ترین دن پر، اس انتہائی معنوی دن پر، اس انتہائی روحانی دن پر، اس انتہائی صبح سے لے کر شام تک، بلکہ 24 گھنٹے میں جو تیری فیوز و برکات اپنے بندوں پہ نازل ہوں گی ان کا کوئی حساب نہیں کر سکتا. پروردگار عالم اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اگرچہ ہم سر سے پاؤں تک گناہوں سے لبریز ہیں، ہمارا ایک ایک بال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن پروردگار عالم تیری ذات بے پناہ عطا کرنے والی ہے، اور خصوصاً ان وسیلوں کو، ان مقدس وسیلوں کو، ان مقدس ہستیوں کو، اس باب الحوائج ہستی کو تو کبھی اپنی بارگاہ سے اس کے واسطے کو رد نہیں کرتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اس ہستی کا واسطہ اپنی بارگاہ سے ٹال دے. پروردگار عالم اس عظیم واسطے کا واسطہ،
इस अजीम इमाम का वास्ता सब मोमिन मोमिनात की जितनी हाजात हैं, दुनियावी हैं, उखरवी हैं, मादी हैं या मानवी हैं, हम जानते हैं उन हाजतों को या नहीं जानते, जितनी हमारे नफ़े में हैं, हमारे फ़ायदे में हैं, हमारे फेवर और हमारे हक़ में हैं, जुमला अपनी बारगाह से हमें अता फरमा। यकीनन इन्नका अंतल वहाब, तू बेपनाह अता करने वाला है, बेशक तू बेपनाह रिज़्क़ देने वाला है, बेपनाह अताएँ देने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जुमला मोमिनीन मोमिनात की बारगाह में तबरीक के साथ साथ अर्ज़ ये है कि आज उस हुज्जत खुदा की विलादत बा शहादत है। आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम सब ही बाबुल हवाइज क्यों ना हो, ये मखज़न उलूम इलाही हैं, ये अबवाबुल्लाह हैं, परवरदिगार आलम तक जाने वाले जो दरवाज़े हैं, ये सब वही दरवाज़े हैं, अल्लाह तक जाने वाले सारे ही बाबुल हवाइज हैं। लेकिन जिस कदर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का बाबुल हवाइज होना शोहरत याफ्ता है, मारूफ़ है, मशहूर है, जिस तरह इमाम के बाबुल हवाइज होने का चर्चा है, जिस तरह इमाम अलैहिस्सलाम का बाबुल हवाइज होना एक ज़रबुल मसल बन गया है, बाकी आइमा अला ज़ाहिर इस तरह नहीं है। तो आज का दिन इस लिहाज से अजीम दिन है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम, हमारे लाख सलाम, हमारी औलादे कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान, हमारी सारी दाराई, हमारी दुनिया, हमारे वालिदैन, हमारी हर चीज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इस फ़र्ज़ान, इस वक्त के इमाम पर हर चीज़ कुर्बान, इसके कदमों पर निसार, इसकी अज़मत को कोई क्या दर कर सकता है। इसी मेरे मौला का एक फ़रमान है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी भी इंसान की अज़मत फ़जीलत को अगर आप देखना चाहें तो उसका आईना मुसीबत होती है। इमाम फरमाते हैं फ़जीलत और मुसीबत दो तराजू के पलड़े होते हैं जो हमेशा ही मसावी रहते हैं, हमेशा ही बराबर रहते हैं। वाक़यान यहाँ पहुँचकर इंसान को महसूस होता है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत है आज। हम उधर इशारा नहीं करेंगे, मुसीबत नहीं पड़ेंगे, फ़कत ये जुमला इमाम की अज़मत के लिए अर्ज़ कर रहे हैं कि मौला वाक़यान आपकी फ़जीलत, आपकी अज़मत, आपकी मंज़िलत, आपकी रफ़ात, आपके दरजात की बुलंदी, आपका इस कायनात में वो मकाम आला, वो मकाम आला, वो मकाम बाला, वो मकाम अरफ़ा, इस बात से पता चलता है आपके मसाइब को जब देखा जाए। वाक़यान मेरे मौला ने फरमाया फ़ज़ाइल का ताल्लुक़ मसाइब के साथ होता है। आपने देखा मसाइब की दुनिया में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का नाम रोशन तरीन नाम है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बेपनाह मसाइब देखे। इमाम की क़ैद के हवाले से अंदाज़ा ही नहीं हुआ, मुअर्रिख़ीन को अभी तक कोई कन्फर्म नहीं कह सका कि मौला अलैहिस्सलाम ने कितने ज़िंदानों में रहे और कितने साल इमाम ने कैद काटी और किस हालत में इमाम ने, किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में, किस इंतहाई सख्त तरीन आलम में मेरे मौला अलैहिस्सलाम ने वो ज़िंदान, वो जेल, वो कैदें काटी। यहाँ से अंदाज़ा होता है ये हुज्जत खुदा वाक़ई खुदा की बारगाह में क्या मकाम और मंज़िलत रखती होगी। लिहाजा इस मौके को कतन ज़ाया न कीजिए। इस इमाम के करीमाना तवस्सुल से अपनी दुनिया भी लबरेज़ कीजिए, अपनी आखिरत भी मुकम्मल तौर पे अपने मालिक से तलब कीजिए। अर्ज़ कर रहे थे मौला अलैहिस्सलाम के ज़िंदानों के बारे में कोई मखसूस मुशख़्ख़स तादाद का पता नहीं चलता। इमाम अलैहिस्सलाम ने हारून के एक ज़िंदान में 4 साल कैद काटी, फिर उसके बाद एक दूसरे हारून के ज़िंदान में मौला ने कुछ अर्सा कैद काटी, फिर फ़ज़ल बिन रबी के ज़िंदान में इमाम ने कैद काटी, फिर फ़ज़ल बिन याहया के ज़िंदान में इमाम ने कैद काटी। इस तरह चलते चलते आखिर
संदी बिन शाहिक के ज़िंदान में इमाम पहुँचे। तो बस यहाँ से अंदाज़ा कीजिए। और फिर मुसीबतों की हम बात कर रहे थे, इसी मेरे मौला ने फरमाया मुसीबतों और फजीलतों का पल्ला हमेशा मसावी रहता है। किस कदर मसाइब हैं इमाम के, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। चूँकि आज विलादत की दिन है, चूँकि आज खुशी का दिन है, चूँकि आज मुबारक दिन है, चूँकि आज हमारे तवस्सुलात के लिए इस दिन को रखा गया है कि हम इस करीम इमाम के तवस्सल से, परवरदिगार आलम से अपनी दुनिया, अपनी आखरत, हर चीज़ मांगें। और हमारा एतक़ाद है, यकीन है, इस करीम वसीले से खुदा किसी की दुआ को कभी हो ही नहीं सकता कि वो रद्द कर दे। इमाम अलैहिस्सलाम कसीरुल अयाल थे। मौला अलैहिस्सलाम की तकरीबन 38, 39, 40 तक, 37 से 40 तक तकरीबन औलाद मिलती है। मौला अलैहिस्सलाम की औलाद आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम में से सबसे ज़्यादा औलाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की थी। आपकी बेटियां भी ज़्यादा थीं, आपके बेटे भी बक्या आइमा से ज़्यादा थे। फिर उसके बाद मौला अमीर अलैहिस्सलाम की औलाद है दूसरे नंबर पर। तो मौला अलैहिस्सलाम की औलाद, अगर जो लोग इस बात को किसी हद तक दर्क करते हैं वो जानते हैं कि तकरीबन पूरे अरब में, बल्कि अजम तक इमाम अलैहिस्सलाम की औलाद फैली हुई है। आप देखें अजम के बहुत सारे इलाकों में इमाम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदान, और इसी तरह बहुत सारे अरब के इलाकों में मौला अलैहिस्सलाम की औलाद। ये सारी मौला अलैहिस्सलाम की औलाद ने, अक्सरियत में इन औलादों ने अपनी जानें जो नजराने पेश किए खुदा की बारगाह में, उसी मिशन, उसी हदफ, उसी मकसद, उसी दीन, उसी इस्लाम, उसी शरीयत के लिए इन्होंने अपने आप को पेश किया। और इमाम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी सारी ज़िंदगी, इमाम तो होता ही वक्फ़ है खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की दीन के लिए, खुदा की दीन की बका के लिए। इमाम की एक एक सांस वक्फ़ होती है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें इमाम ने किस मुश्किल और कठिन मराइल से गुजर कर अपनी ज़िंदगी परवरदिगार आलम की रज़ा के लिए, उसके दीन की बका के लिए, उसकी दीन और शरीयत और इस्लाम की के बाकी रहने के लिए इमाम ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की जिनका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एक दर्स तो हमें यहाँ से लेना चाहिए, एक कम अज़ कम हमारे लिए दर्स तो बनता है। इमाम ने अपनी सारी औलाद, कम अज़ कम तादाद भी ले तो 37 औलाद या 38 औलाद इमाम अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए पेश की। कोई अभी भी हम जब देखते हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, कोई बेटा कहाँ है, कोई बेटा कहाँ है, दुनिया में बिखरे हुए हैं। अरब व अजम में इमाम की औलाद, अपनी बिलाफसल औलाद, हकीकी बेटे इमाम के बिखरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इमाम ने क्यों इतनी शदीद किस्म की मुसीबतें बर्दाश्त की, सख्त मसाइब बर्दाश्त किए? सारी ज़िंदगी इमाम की जिंदानों और सख्त तरीन जेलों में गुजर गई। आखिर कोई हदफ था, आखिर कोई मकसद था, आखिर कोई मिशन था। उस मिशन को याद रखिए। यही इमाम की मोहब्बत का तकाजा है, यही इमाम की औलाद की मोहब्बत का तकाजा है। सबसे बड़ा तकाजा यही है कि हम मौला अलैहिस्सलाम ने जिस हदफ के लिए, जिस मकसद के लिए अपना सारा कुछ पेश किया, आए कुछ हम भी अज़्म करें, कुछ हम भी तस्मीम करें, कुछ हम भी एक वादाए मिसाक और पुख्ता वादा करें कि हम भी अपने आप को, अपनी औलादों को, अपनी जानों को, अपने माल को, अपनी सारी दाराई को, अपने वालिदैन को, अपनी हर चीज़ को, बल्कि इस तरह क्यों नार्ज करूं, अपना है ही हमारा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ इन्हीं की वजह से है, ये सारा कुछ इमाम मूसा काज़िम की वजह से है जो कुछ हमें मिला है। लिहाजा ये सारा कुछ उन्हीं का हमारे पास अमानत है। आए इस अमानत को, इन अपनी सलाहियतों को, इस अपने इस्तेदाद को, अपनी औलादों को, अपने वालिदैन को, अपनी दुनिया को, अपने माल को, मेरी और आपकी क्या दुनिया हो सकती है, मेरा और आपका माल, उसकी क्या हैसियत हो सकती है। फ़कत हैसियत अगर है इस कायनात में तो इन्हीं वजूदों की है जिनकी वजह से खुदा ने इस कायनात को पैदा किया है, जिसकी वजह से खुदा ने आपको और मुझे खल किया है। आए ये सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी कि हम अपना सारा कुछ इमाम की रज़ा की खातर कुर्बान करें और खुदा से ये दुआ मांगें, परवरदिगार आलम हमें ये जज्बा अता फरमाए कि हम इनकी रज़ा के लिए, इनकी खुशनुदी के लिए सारा कुछ कुर्बान कर सकें और इनकी सीरत को
पूरे तौर पे कोशिश करें, किसी हद तक उस पर अमल कर सकें, ताकि इसमें यह भी नहीं है कि हमें अजर की का तकाजा हो, हमें अजर की लालच हो, हमें अजर की तमा हो, कल हमें ताकि अजाब न किया जाए, ताकि हमें कल बेहिश्त में जन्नत की नेमत अता की जाए। नहीं, हमें अगर कुछ भी अता न किया जाए, इन वजूदों का हमारे ऊपर इतना एहसान है, इससे पहले जो कुछ भी खुदा ने हमें अता किया है वो इन्हीं वजूदों की वजह से अता किया है। बस हमारी हर चीज़ अमानत है इन वजूदों की, हमारे पास जो कुछ है कर्ज है इन हस्तियों का। आइए बस ऐद कीजिए अपनी हर चीज़ को, अपनी हर दाराई को, अपनी दौलत माल औलाद, अपने ख्वाहिशात, हर चीज़ को इनके लिए कुर्बान कीजिए। यही इंसान की दुनिया व आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी है, और ये इस ख़ानदान से, इन हस्तियों से मोहब्बत करने का तकाजा है, ये इनसे इश्क करने का तकाजा है। और इस कुर्बानी में, इस जानिसारी में, इस फिदाकारी में, इन पर हर चीज़ कुर्बान करने में एक लज्जत है, एक कैफ है, एक सुरूर है जो खुदा ने रखा है। अगरचे वो खुदा इस एक एक अमल के बदले सब इंसानों को अजर भी देगा, नेमतें भी देगा, हमेशा की आसूदगी भी देगा, जन्नत भी देगा, जन्नत की नेमत भी देगा। लेकिन अगर ये नेमत ना भी होती फिर भी हमारे पास जो कुछ है ये सारा कुछ इन्हीं हस्तियों का हमारे पास अमानत थी, हमारे ऊपर कर्ज है। आए परवरदिगार आलम से दुआ करें, परवरदिगार आलम इन हस्तियों के सामने हमें खुशनूद फरमा। इनकी जो ख्वाहिश है हमसे, हमारे आइमा जो हमसे ख्वाहिश रखते हैं, जो हमसे तकाजा करते हैं, परवरदिगार आलम हमें अपने आइमा के आज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इस अजीम विलादत का वास्ता, अपने आइमा की तमाम ख्वाहिशात को, उनकी तमाम आरजुओं को, उनकी तमाम फरमाइशात को, जो कि तेरी ज़ात की फरमाइशात हैं, जो कि तेरी ज़ात की ख्वाहिशात हैं, उन पर पूरे तौर पर अमल करने की तौफीक कामिला अता फरमा। परवरदिगार आलम आज तू दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। मौला हमें मादी और मानवी बेशुमार नेमतें अता फरमा, अपनी नेमतों को सही मानों में खर्च करने की, मसरफ करने की, सर्फ करने की तौफीक नसीब फरमा। थोड़ी सी दुनिया में परवरदिगार आलम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। इससे पहले मेरे मौला जितने गुनाह किए हैं, आज मेरे इमाम की विलादत का वास्ता, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अज़मत का वास्ता, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, आइंदा गुनाह करने की तौफीक नसीब न फरमा। परवरदिगार आलम जुमला मोमिनीन मोमिनात जिंदा हैं या मरहूमीन हैं, सबके सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमा। सबको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अज़मत का वास्ता, आज के रोज़ की शहादत का वास्ता, आज के दिन की अज़मत का वास्ता, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के इस शरफ का वास्ता जो इस कायनात को बख्शा है, तेरी इस हुज्जत का वास्ता, परवरदिगार आलम सबकी मादी और मानवी जायज़ दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।